ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਪੇਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜ਼ੂਲੋਜੀ, ਬੋਟਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੁਸ਼ੀ ਮੈਮ ਤੇ ਨਿਕਿਤਾ ਮੈਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। 6 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ PDF ਨੋਟਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਲੱਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ MCQ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਹੈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣ। PS ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਦੋਂ ਪੋਸਟ ਆ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਾਈ ਯੁਕਤੀ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ YouTube ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 2-3 ਕਲਾਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਕਸ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਨੇ ਕਢਾਣਾ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵਿੰਗ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨੋ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਉਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਵਾਂ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਟੌਪਿਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵਿੰਗ ਤੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਓ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਰਹੇਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮਸ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 5th 6th ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, y ਐਕਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, XY ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਬਈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा ग्रैजुएशन दी जे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी है ना यादों की बारात जे दिमाग च आ रही है तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा भी ਸਫੈਰੀਕਲ ਪੋਲਰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਪੋਲਰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ऑसिलेटरी मोशन है, SHM है, स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी किसी भी तरीके का मोशन कर रही है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ सब तो पहला की पता होना चाहिए, ਉਹਦੀ पोजीशन और ਉਹਦਾ टाइम ਜਿਹੜਾ है पता होना चाहिए, ठीक है। किस टाइम ਤੇ ਉਹਦੀ की पोजीशन है, बेसिकली ਸਾਨੂੰ एक इक्वेशन ਉਹ पता होनी चाहिए है ਜਿਹੜੀ कि ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ पोजीशन ਦੱਸੇ। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਜੇ ਤੁਸੀਂ पोजीशन ਨੂੰ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ वेलोसिटी ਨੂੰ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਦੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਥੋਗਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨॉन ਆਰਥੋਗਨਲ। ਆਰਥੋਗਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਬਈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਰਥੋਗਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲੈਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ XYZ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੈ, I कैप, J कैप, K कैप, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਥੋਗਨਲ ਸਿਸਟਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੋਣ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਥੋਗਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨॉन ਆਰਥੋਗਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਥੋਗਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥੋਗਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ, ठीक है जी, दूसरे होंगे हैं पोलर और लास्टली साडे कोल होंगे हैं सिलेंड्रिकल, ठीक है। हुण इहदे विचों जिहड़े पहले दो हैं वो तुहाडे सिलेबस हैगे है, कार्टीजियन और पोलर साफ साफ तुहाडे सिलेबस के अंदर मैंशन है, सिलेंड्रिकल तुहाडे सिलेबस के अंदर मैंशन नहीं है तो उन्होंने आपां इत्थे डिस्कस नहीं करांगे, ठीक है जी। आपां स्टिक रहना किते ते सिलेबस से, क्योंकि क्वेश्चन तुहाडा किते जो बनेगा सिलेबस के दिते हुए टॉपिक्स दे विचों ही जिहड़ा है तुहाडा क्वेश्चन बनेगा। ਤਾਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ और पोलर सिस्टम किस तरीके ਦੇ है, ਆਰਥੋਗਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, मतलब कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਸ ਚ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ I ਡਾਟ J ਕਰ ਲਓ, J ਡਾਟ K ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, I ਡਾਟ K ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब कि वो की है आपस के अंदर सारे दे सारे परपेंडिकुलर है। जानते हो ना जे आप कोई भी दो वैक्टर प्रूव करने हो परपेंडिकुलर है तो उन्होंने डॉट प्रोडक्ट जो आप जीरो शो कर दिए तो आप उधर प्रूव कर सकते हैं कि दोनों वैक्टर्स जोड़े है वो परपेंडिकुलर है। तो वो सारी कंडीशंस इन्हां दे अंदर की करनगियां, ट्रू जिहड़ियां है होल्ड करनगियां, ठीक है। हुण सब तो पहला करके आप शुरू करते हैं किहदे नाल, कार्टीजियन कोआर्डीनेट सिस्टम दे नाल शुरुआत करते हैं। साडा पहला जिहड़ा अज दा टॉपिक रहेगा वो की रहेगा, कार्टीजियन। कार्टीजियन कोआर्डीनेट सिस्टम डिस्कस करांगे। हुण कार्टीजियन कोआर्डीनेट सिस्टम्स भी तुहाडा 3 डायमेंशनस दे अंदर हुंदा है, ठीक है। सब तो पहला दा तुहाडा 1D होएगा। 1D मतलब सीधी जी गल है कि बॉडी मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बॉडी इक्को ही लाइन दे अलोंग जिहड़ी है उहदी
पोजीशन चेंज हो रही है बॉडी की, इदा की बॉडी को आप की कहने, इदा के बॉडी को आप किवें रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1D कार्टीजियन कोआर्डीनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अंदर जिहड़ा साडा पोजीशन वैक्टर होएगा, पोजीशन वैक्टर की होएगा जिहड़ा सानू पार्टिकल की पोजीशन दसे एट अ पर्टिकुलर टाइम t, वो या तो हो सकता है एक्स आई कैप, या हो सकता है वाई जे कैप, या हो सकता है जेड के कैप। इन्हां दे विचों कुछ भी एक जिहड़ा है वो हो सकता है। जे इनू आपां डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पैक्ट टू टाइम, तो तुसीं जाणदे हो जे आपां इनू डिफरेंशिएट करता विद रिस्पैक्ट टू टाइम तो सानू की मिल जाता है, सानू मिल जाती है वेलोसिटी। ठीक है, dr/dt तो की मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो जे बॉडी एक्स डायरेक्शन च मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी vx आई कैप, जे y च तो vy j कैप, ते जे x z च मूव कर रही है तो की हो जाएगा vz k कैप। ठीक है जी, ये हो गया। सिमिलरली तुसी एक्सेलरेशन जिहड़ी है वो फाइंड कर सकते हो। एक्सेलरेशन तुहानू पता है dv/dt हुंदी है, तो सेम वे दे नाल जिहड़ी है तुसी एक्सेलरेशन लिख सकते हो ax आई कैप हो सकती है, या ay j कैप हो सकती है, या हो सकती है az k कैप। हुण इत्थे एक चीज तुसी ध्यान रखनी है, तुसी जिहड़ी नोटेशंस देखोगे क्वेश्चंस दे अंदर भी तुसी कुछ एवें लिखा देखोगे x डॉट y डॉट z डॉट, तो इन्हां दा मतलब की हुंदा है जे किसी भी चीज दे उपर आपां डॉट पाता मतलब कि आपां किनू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपां उहदे डेरिवेटिव नू रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू टाइम t। ठीक है जी, तो x डॉट दा मतलब की होया, बेसिकली x डॉट दा मतलब हो गया dx/dt। ठीक है, तो किसी भी चीज के डिफरेंसीएशन विद रिस्पैक्ट टू टाइम नाल डिफरेंसीएशन तुसी पूरा इन्ना वड्डा लिखण दी जगह ते तुसी की लिख सकते हो, एक्स डॉट लिख सकते हो। उस पर्टिकुलर सिंबल के उपर तुसी डॉट पा दो तो उसका मतलब की हो गया एक टाइम डिफरेंसीएशन विद रिस्पैक्ट टू टाइम टी। जे मैं ऊपर डबल डॉट पा दा भाई, डबल डॉट पा दा तो इसका मतलब की हो गया d2x/dt स्क्वायर। ठीक है, d2x/dt स्क्वायर जो कि रिप्रेजेंट किनू करती है, एक्सेलरेशन नु रिप्रेजेंट करती है। जे ਜਿਹੜੀ एक्सेलरेशन है, ਜਿਹੜਾ सॉरी पोजीशन है वो फंक्शन होवे टाइम दा। ठीक है, जे फंक्शन होवे टाइम दा ਤਾਂ ਕਿਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, v dv/dx, v dv/dx। ठीक है, दो ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਜੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿਦਾ टाइम ਦਾ ਤਾਂ d2x/dt स्क्वायर। जे एक्सेलरेशन फंक्शन दिता होवे किदा x दा पोजीशन दा तो आपां की रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx हुंदा। ठीक है जी, चलो ये तो सीगियां थोड़ी जिहियां बेसिक जिहियां गल्लां। हुण ये हो गया 1D सिस्टम, बहुत ही सिंपल है। ये अंदरों तुहानूं कदे भी क्वेश्चन जिहड़ा है बहुत रेयर है कि देखने को मिल जाए, क्योंकि काफ़ी बेसिक है। ठीक है, ये तो बाद जिहड़ा तुहाडा आंदा है कार्टीजियन के अंदर ही दूसरे तरीके का सिस्टम तुहाडा हो जाता है 2D कोआर्डीनेट सिस्टम। ठीक है, 2D कोआर्डीनेट सिस्टम के अंदर की हुंदा है, तुहाडे कोल दो डायमेंशनस जिहड़ियां है वो हुंदियां, यानी कि तुसीं सिंपल देखिया होएगा, इहनूं आपां की कहने आ, इहनूं आपां प्लेन भी कहने आ। ठीक है, प्लेन भी कहने आ, जिवें तुसीं सुनिया होएगा XY प्लेन, YZ प्लेन, XZ प्लेन, तो की है 2D कार्टीजियन सिस्टम की उत्थे गल हो रही है। इहदा सब तो सिंपलेस्ट एग्जांपल आपां लै सकदे हां XY प्लेन। ठीक है, जे आपां XY प्लेन के अंदर किसी भी पार्टिकल नूं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो गया ओरिजिन। तो जे इत्थे पार्टिकल P है, ठीक है, जे इत्थे पार्टिकल P है तो इहदा जिहड़ा पोजीशन है, इहदी जिहड़ी पोजीशन है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, आज मेरा थोड़ा जिहा गला खराब है, एक मिनट दो बस। हाँ जी, आ जाओ। जे आपां इहदी पोजीशन दसनी है फ्रॉम पॉइंट O, तो साडे कोल दो चीज़ां हैं, एक तो कुछ डिस्टेंस ये एक्स च मूव करे। ठीक है, एक्स के अंदर कुछ डिस्टेंस मूव करे और कुछ डिस्टेंस इन्हें मूव करे कि वाई च, तो इनू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स कॉमा वाई के नाम। तो जे आप अंदर एक यूनिट वैक्टर सॉरी जे एक आप पोजीशन वैक्टर लिखना चाहिए 2D के अंदर, तो आप किवें लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है जी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जे इनू आप एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो साडे कोल की आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, जिन्होंने तुसी सिंपली लिख सकते हो x डॉट आई कैप प्लस y डॉट जे कैप। ठीक है, और जे तुसी लिखना चाहो एक्सेलरेशन तो इन्हों दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो आ जाएगा x डॉट आई कैप, x डबल डॉट आई कैप प्लस y डबल डॉट जे कैप। अच्छा, वैक्टर का जो कोई तुहानूं मैग्नीट्यूड पूछ ले भी किवें तुसी मैग्नीट्यूड कढना है, तो भाई r वैक्टर का जिहड़ा मैग्नीट्यूड हुंदा है तुहानूं पता है की हुंदा है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जिहड़ा है मैग्नीट्यूड होंगे। सिमिलरली तुसी वेलोसिटी का भी कट सकते हो, वो की हो जाएगा x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर
अंडर रूट। सिमिलरली एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड जिहड़ा है वो तुसीं कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो हो गई सिंपल जी गल कि बारे 2D कोआर्डीनेट सिस्टम के अंदर पोजीशन वेक्टर किवें लिख सकते हैं, वेलोसिटी किवें लिख सकते हैं और जिहड़ी है एक्सेलरेशन किवें लिख सकते हैं। हुण एवें ही जे आपां 3D की गल करिए, जिवें कि स्पेस की गल करिए जिहदे अंदर कि आपां रहिंदे आ, ठीक है जी, जे उहदे अंदर आपां किसी भी पॉइंट नूं रिप्रजेंट करना है, जे उहदे अंदर आपां किसी भी पॉइंट नूं रिप्रजेंट करना चाहते हैं तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ यूज करांगे 3D कोआर्डीनेट सिस्टम ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ x y और z ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ x ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ i ਕੈਪ, y ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ j ਕੈਪ, z ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ k ਕੈਪ। ठीक है जी, ये हो गया। हुण इहदे अंदर जे तुसीं किसी भी पॉइंट P नूं रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो तुहाडे कोल तीन कोआर्डीनेट्स होणगे x y ते z, ठीक है। और ये अंदर जो तुम पोजिशन वेक्टर लिखना चाहते हो तो किवें लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सिमिलरली इनू एक बार डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तक की आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप प्लस जेड डॉट के कैप। सिमिलरली जे पोजिशन नू दो बार डिफरेंशिएट कर दिए या वेलोसिटी नू एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो आ जाएगी एक्सेलरेशन x डबल डॉट आई कैप प्लस y डबल डॉट j कैप प्लस z डबल डॉट k कैप, ठीक है जी। ये आ गया। हुण ये हो गए साडे 3D कोआर्डीनेट सिस्टम। हुण इहदे अंदर एक चीज ध्यान देने वाली है, वो की ध्यान देने वाली है बई, जे साडा पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P दी चाहे पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, जे पॉइंट P मान लो पहला इत्थे सीगा, हुण इत्थे चला गया, फिर इत्थे चला गया, x1 इत्थे सी x1 y1 z1, इत्थे आया हो गए कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2, इत्थे गया हो गए कोऑर्डिनेट्स x3 y3 z3। तो भाई ये अंदर एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि चाहे पोजीशन पॉइंट P दी चेंज हो रही है वक-वक टाइम्स ते, पर x y और z एक्सिस तो फिक्स है ना, ठीक है, x y और z एक्सिस तो फिक्स है ना। तो जे ये अंदर कोई तुहानू पूछ ले कि आई कैप डॉट वर्गी कोई चीज़ होंदी है तो बई आई कैप डॉट वर्गी चीज़ कुछ नहीं होंदी, आई कैप डॉट की वैल्यू जिहड़ी है वो जीरो होएगी। मतलब जे तुसी यूनिट वैक्टर का डिफरेंसीएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चाहे वो आई कैप होवे, चाहे जे कैप होवे, चाहे के कैप होवे, वो की होएगा, जीरो होएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अंदर बई जिहड़े एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं ये की है, फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड है, ठीक है। इस करके जे तुसी आई कैप डॉट कटना चाहो या जे कैप डॉट कटना चाहो या के कैप डॉट कटना चाहो, इस सारे का सारा की होएगा, जीरो होएगा, ठीक है। पर ये चीज तुसी देखोगे अगे जाके जेडे आपां फर्दर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़न लगे आ जिवें पोलर, ਉਹਦੇ अंदर ये चीज़ ट्रू नहीं होंगी। उन्होंने जेडे यूनिट वैक्टर्स होंगे हैं वो भी वेरीएबल होंगे हैं, मतलब कि जो उन्होंने यूनिट वैक्टर्स का भी तुसी डिफरेंसीएशन करना चाहो विद रिस्पेक्ट टू टाइम t तो वो जीरो नहीं आता, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक एवें दा सिस्टम है जिहदे अंदर की यूनिट वैक्टर्स की डिफरेंसीएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t जीरो होंदी है। यही रीजन है कि ये सिंपल है, सानू इनू यूज करना सिंपल है, ठीक है। जिन्ने जिन्ने कॉम्प्लीकेटेड होंदे जाणगे सिस्टम्स, उन्हां दे जिहड़े यूनिट वैक्टर्स हैं वो टाइम दे नाल चेंज होंदे हैं, फिक्स नहीं रहंदे, इस करके उन्हां दा भी डिफरेंसीएशन हुंदा है जदों भी आपां कोई भी चीज़ सॉल्व करन जांदे, ठीक है। तो हुण ये सीगा साडा कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस तो बाद जिहड़ा आपां पढ़ना है वो हैगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हुण याद रखो कि 1D वर्गी कोई चीज़ नहीं होंदी, ठीक है। ये अंदर आपां शुरुआत करते हैं 2D तो ते जाने 3D तक, ठीक है। तो जिहड़ा 2 डायमेंशनल पोलर सिस्टम हुंदा है, ठीक है, जिहड़ा 2 डायमेंशनल पोलर सिस्टम हुंदा है उन्होंने आपां की कहने आ, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। इनू की कहने आ, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहने आ। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हुण मतलब की है, फिजिकल मतलब की है, समझने की कोशिश करो। ये साडे कोल नॉर्मल कार्टीजियन कोऑर्डिनेट है x ते y, इहदे अंदर जे साडे कोल कोई भी पॉइंट है P, जिन्हों तुसी रिप्रेजेंट करना चाहो तो x ते कॉमा y दे नाल तुसी इहनू रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का की मतलब होया कि मैं जी इस पॉइंट P नू चाहवां रिप्रेजेंट करना चाहवां एक सर्कल ते, ठीक है, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस से, तो मैनू किहड़ी 2 चीज़ों की जरूरत होएगी। सब तो पहला तो सीधी जी गल है, मैनू उस सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए, जिहड़े सर्कल ते मैं इहनू रिप्रेजेंट करना चाहनी हाँ उस सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए, यानी कि मैनू एक तो पता होना चाहिए r, ठीक है। और उहदे नाल नाल मान लो रेडियस पता लग गया, हुण इस पूरे सरकमफ्रेंस से पॉइंट किते भी हो सकता है,
ठीक है, पॉइंट किते भी हो सकता है, तो मैनू एग्जैक्टली जिहड़ा है थीटा पता होना चाहिए, यानी कि एंगल जिहड़ा बना रहे हैं पॉइंट P विद एक्स एक्सिस, ताकि मैनू पता लग जाए कि पॉइंट कित्थे प्रेजेंट है एग्जैक्टली। तो जे मैं किसी भी सर्कल ते किसी भी पॉइंट नू लोकेट करना होवे तो मैनू किहड़ियां दो चीज़ां चाहिए, मैनू एक चाहिए है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, और दूजा मैनू की चाहिए है एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, जे मैनू एंगल पता लग जाए और रेडियस पता लग जाए तो मैं पॉइंट नू एग्जैक्टली मार्क कर सकती हूँ भी वो कित्थे होएगा। तो यही जिहड़े कोआर्डीनेट्स है वो किहदे कोआर्डीनेट्स है, प्लेन पोलर कोआर्डीनेट सिस्टम के जिहड़े है कोआर्डीनेट्स ये हुंदे हैं। ठीक है, तो ये अंदर दो साडे कोल कोआर्डीनेट्स हुंदे हैं, किहड़े हुंदे हैं r, थीटा, जिथे जे आपां फिजिकल सिग्निफिकेंस की गल करिए तो r जिहड़ा है वो सिग्निफाई कर रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल जिहदे अंदर की तुसी जिहदे उपर की तुहाडा पॉइंट है, और थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये चीज याद रखनी है। ये एंगल किहदे नाल बनया हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे नाल बनया हुआ। ठीक है जी, तो ये हो गया r, थीटा जिहड़ा कि तुहाडा किहदे अंदर आंदा है, प्लेन पोलर कोआर्डीनेट सिस्टम के अंदर आंदा है। हुण जे इहदे अंदर मैं पोजीशन वेक्टर लिखना चाहां, देखो नॉर्मल जे मैं कोई भी पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूंगी r, तो की है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, हुण इत्थे जे तुसीं ध्यान नाल देखो, जे मैं इधरों एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ला, ठीक है, ये हो गया एंगल थीटा, ये साडे कोल एक ट्रायंगल है, ये आर है। ठीक है, ये की है आर है, जिहड़ा एक्स है, जिहड़ा एक्स है, ये एक्स है ना, जिहड़ा एक्स है वो की है आर कॉस थीटा है, और जिहड़ा वाई है, जिहड़ा वाई है वो की है आर साइन थीटा है। ठीक है, तो जे मैं एक्स और वाई लिखना चाहवां इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, तो एक्स की हो गया आर कॉस थीटा और वाई की हो गया आर साइन थीटा। ठीक है, तो इत्थे वैल्यूज पा दो, तुहाडे कोल आर दा एक्सप्रैशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, तो हो गया आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है जी, ये साडा पोजीशन वेक्टर हो गया इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, चलो हुण इहदे तो बाद इहदे अंदर देखो एक प्रॉब्लम हो रहा है। हुण इस एक्सप्रैशन च प्रॉब्लम की है, इस एक्सप्रैशन के अंदर प्रॉब्लम है कि हजे भी आई कैप और जे कैप है, और आई कैप और जे कैप किहदे अंदर हुंदा है, कार्टीजियन के अंदर हुंदा है। ठीक है, कार्टीजियन के अंदर हुंदा है, मतलब कि ये फुली जिहड़ा है अजे तक प्लेन पोलर के अंदर कन्वर्ट नहीं होया। ठीक है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट नहीं होया, तो जे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है, तुहानूं पता है इहदे अंदर हुंदा आर ते थीटा, जिवें उत्थे एक्स वाई जैड दे यूनिट वैक्टर सीगे आई कैप जे कैप के कैप, एवें ही इत्थे आर दा जिहड़ा यूनिट वैक्टर है वो की होएगा आर कैप, थीटा दा जिहड़ा यूनिट वैक्टर है वो की होएगा थीटा कैप। ठीक है, तो इत्थे देखो आर कैप की है, आर कैप है यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर, यानी कि ये तुहाडा हो गया कि आर कैप। ठीक है जी, एक ही हो गया आर कैप इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर। ठीक है, यूनिट वैक्टर तुहानूं पता है हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग जिहड़ा भी वैक्टर है वो लिया जाता है। एवें ही जे आपां गल करिए थीटा दी, जिहड़ा थीटा कैप है वो होएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, मतलब कि जे मान लो मैं इधर ले आवां पॉइंट पी नूं, आर तां फिक्स रहा, ठीक है, आर तां फिक्स रहा, की वध गया थीटा वध गया, थीटा डैश हो गया। ठीक है, की हो गया थीटा वध गया। तो हुण ये जिहड़ा है तुहानूं एक डिफरेंशियल चेंज शो कर रहा है किहदे अंदर, थीटा दे अंदर, और इहदे अलोंग ही डायरेक्शन होएगी किहदी, थीटा कैप दी। तो थीटा कैप जिहड़ा है वो की हो गया, इत्थे हो गया। तो देखो बई इत्थे भी जिहड़ा आर कैप और थीटा कैप है, इहदे विच दा एंगल की होएगा 90 डिग्री होएगा, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया सी किस तरीके दा सिस्टम है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हुण देखो ए सीगा एक्स एक्सिस और ए सीगा वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आर कैप नूं आपां की लिख सकते हैं बई, जे ए एंगल थीटा है, जे ए एंगल थीटा है तो ए वाला एंगल भी थीटा होएगा। ठीक है, ए वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और जे ए वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तुहानूं पता है एक्स और आर कैप और थीटा कैप के अंदर भी एंगल 90 है, जे ए एंगल 90 माइनस थीटा है तो ए एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, तो हुण इत्थे तुसीं की कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो दोबारा इन्हां नूं किहदे अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, आर कैप की हो जाएगा आर कैप कॉस थीटा, ठीक है, आर कैप कॉस थीटा आई कैप, और आर कैप साइन थीटा जे कैप। एवें ही तुसीं थीटा कैप नूं ब्रेक कर सकते हो, इत्थे आ जाएगा थीटा दी डायरेक्शन के अंदर की आएगा थीटा कैप
थीटा कैप cos थीटा जे कैप, और इधर ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਕੈਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਥੀਟਾ ਕੈਪ cos ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਕੈਪ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ r ਥੀਟਾ r ਕੈਪ ਔਰ ਥੀਟਾ ਕੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਕੈਪ ਔਰ ਜੇ ਕੈਪ ਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖੋ r ਕੈਪ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬਈ, याद रखना है, याद की रखना है, वैसे तो तुसी इधरों कंपोनेंट्स जो ब्रेक करके देख ही सकते हो। आर कैप जिहड़ा है वो है आर कैप cos थीटा आई कैप प्लस आर कैप sin थीटा जे कैप, पर इत्थे आर कैप दी मैग्नीट्यूड की होएगा 1 होएगा, क्योंकि आर कैप एक यूनिट वैक्टर है। यूनिट वैक्टर दा तुसी जानते हो मैग्नीट्यूड जिहड़ा है वो हमेशा 1 हुंदा है। तां बचिया की साडे कोल, बचिया साडे कोल cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਟਾ ਕੈਪ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੀਟਾ ਕੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਥੀਟਾ ਕੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੀਟਾ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ cos ਥੀਟਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਤੋਂ ਅਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ sin ਥੀਟਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਥੀਟਾ ਕੈਪ cos j कैप, क्योंकि y एक्सिस है। और इधर नो दूसरा कंपोनेंट है साइन वाला कंपोनेंट माइनस एक्स वाला, तो साइन थीटा दे नाल की आ जाएगा माइनस आई कैप आ जाएगा। और तुहानू पता है थीटा कैप दा जिहड़ा मैग्नीट्यूड है वो 1 होएगा, तो साडे कोल रह जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है जी, तो साडे कोल आर आ गया, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। आर कैप किवें लिख सकते हो बई, बस सीधा आर दे एक्सप्रैशन दे अगे आर हटा दो, पोजीशन वेक्टर दे अगे आर हटा दो, की आ जाएगा आर कैप आ गया cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। और जे थीटा कैप लिखना चाहते हो, ये तो हुण मैं तुहानू डायग्राम के थ्रू समझाया ना, मैं तुहानू ये फिगर के थ्रू समझाया भी मैं किवें लिखी ये चीज़। पर जे तुसीं याद रखना चाहते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो तुसीं किवें याद रख सकते हो बई, आर लिखिया आर cos थीटा आई कैप प्लस आर sin थीटा जे कैप, ये अगों आर हटाता, की आ गया आर कैप आ गया। और उस तो बाद की करिया इहदा डिफरेंसीएशन करता विद रिस्पेक्ट टू थीटा दा, की आ गया थीटा कैप आ गया। देखो cos थीटा दा डिफरेंसीएशन माइनस sin थीटा और sin थीटा दा डिफरेंसीएशन cos थीटा। ठीक है जी, तो साडे कोल की आ गया आर वैक्टर आपां कढ लिया, आर कैप कढ लिया, और जिहड़ा है थीटा कैप ओनू भी आपां इत्थे कैलकुलेट कर लिया। हुण गल आंदी है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लई तुहानू पता है वेलोसिटी लई आपां इहनू डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन लिए डबल डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर हुण इहदे अंदर प्रॉब्लम की आएगी जदों तुसीं इहनू डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे, पहला ही थैंक यू आ गया सी है ना। देखो वेलोसिटी लिखण दे लई तुहानू पता है आपां करदे हां dr/dt, आर जिहड़ा है वो बेसिकली की है आर कैप है। ठीक है, आर की है आर कैप है। चलो हुण इहदे अंदर देखो जदों तुसीं इहनू डिफरेंशिएट करोगे तो तुहाडे कोल की आएगा, दो टर्म्स आएंगियां, क्योंकि इत्थे आर कैप भी जिहड़ा है वो भी टाइम दा फंक्शन है। मैं तुहानू दस्सिया सी आर कैप और थीटा कैप जिहड़े प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जिहड़े यूनिट वैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड नहीं है विद टाइम। जिवें कार्टेशियन के अंदर की सीगा एक्स वाई और जेड एक्सिस हमेशा फिक्स सीगे, तो उन्हां दा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 से, तो आपां सीधा जिहड़ा है उन्हां नू कांस्टेंट ट्रीट करदे सी। पर इत्थे वो चीज़ नहीं होएगी, इत्थे आर कैप नू भी आपां डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो साडे कोल दो टर्म्स जिहड़ियां हैं वो इहदे अंदर बन के आ जाएगी। ठीक है, तो एक आ गया आर दे नाल आर कैप डॉट प्लस, हुण इहनू कांस्टेंट रख लो, दूसरे नू कर लो आर डॉट। ठीक है जी, तो हुण देखो इत्थे सानू रिक्वायरमेंट एक इहदी भी है आर कैप डॉट, ये कुछ नवा ही आ गया, मतलब कि इहदा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हुण इहदा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किवें कर सकदे हो, ट्राई कर सकते हो तुसीं। इत्थे मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी क्योंकि सानू दी रिक्वायरमेंट नहीं है, डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आएगा किहदे चों, फॉर्मूले चों। तो देखो जे तुसीं इहनू फाइंड करना चाहते हो तो तुहानू पता है आर कैप की वैल्यू पता है। ठीक है, तो इहनू तुसीं की कढना है डी आर कैप बाय डी टी, तो इहनू तुसीं ऐ लिख सकते हो डी आर कैप बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। जिहड़ा डी थीटा बाय डी टी है वो की है थीटा डॉट है। ठीक है, डी आर कैप बाय डी थीटा, इनू डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, इनू चलो इन्ना एक करके दिखा दिन्नी हां, दूजा तुसीं अपने आप कर लियो। थीटा डॉट आ गया, हुण डी आर कैप डी थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा आई कैप, ते साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा जे कैप।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਸਾइन थीटा आई कैप और cos थीटा जे कैप की है, थीटा कैप ही नहीं है, थीटा कैप है तो ये सारे ब्रैकेट की जगह ते की पाता थीटा कैप। ठीक है, तो साडे कोल की आ गया जिहड़ा डी आर कैप बाय डी टी है, यानी कि आर कैप डॉट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई थीटा डॉट थीटा कैप। एवें तुसी थीटा कैप डॉट की वैल्यू भी कट सकते हो। ठीक है, थीटा कैप डॉट की वैल्यू कड्ढण लई की करो, डी थीटा कैप बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। जिहड़ा डी थीटा बाय डी टी है बई वो फिजिकली इत्थे की रिप्रेजेंट कर रहा है, डी थीटा बाय डी टी रिप्रेजेंट करता है एंगुलर स्पीड। ठीक है, एंगुलर स्पीड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये तुसी जानते हो कि डेफिनेशन होंदी है एंगुलर स्पीड की डेफिनेशन होंदी है। ठीक है जी, तो ये साडे कोल आ गया थीटा डॉट थीटा कैप। एवें जदों तुसी सॉल्व करोगे थीटा कैप लई, देखो आर कैप कितना आ गया, आर कैप डॉट आ गया थीटा डॉट थीटा कैप, ते जदों तुसी थीटा कैप डॉट कड्डोगे तो वो आएगा माइनस थीटा डॉट आर कैप, माइनस थीटा डॉट आर कैप। कट के देख लो, ये रिजल्ट जिहड़ा है तुहाडा ट्रू होल्ड करेगा, कट के देखना चाहिए तुहानूं, इहदे नाल तुहाडा कॉन्फिडेंस जिहड़ा है वो बिल्ड होएगा। हुण ये दोनों भी चीज़ां जिहड़ियां है याद रखनी है। ठीक है, याद रखनी है, ये अंदरों भी क्वेश्चन बन सकता है या डायरैक्टली तुहानूं फॉर्मूला ही पूछा हो सकता है एग्जाम में। ठीक है जी, तो ये हो गया आर कैप डॉट और थीटा कैप डॉट की वैल्यू। हुण इन्हां नूं इत्थे सबस्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो आर कैप डॉट की वैल्यू नूं वेलोसिटी कड्ढण लई इत्थे पा दो, तो कितनी हो जाएगी आर कैप डॉट कितना है थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर डॉट आर कैप। तो इत्थे देखो जो मैं इन्हू उल्टा करके मतलब चेंज करके लिखना, ये हो गया आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। दो चीज़ा आ गया वेलोसिटी के अंदर, दो कंपोनेंट साडे कोल आ गए, एक आ गया आर कैप वाला कंपोनेंट, दूजा आ गया थीटा कैप वाला कंपोनेंट। ठीक है जी, एक आ गया आर कैप वाला कंपोनेंट, दूजा किदा आ गया कंपोनेंट थीटा कैप वाला कंपोनेंट साडे कोल आ गया। तो जिहड़ा आर कैप वाला कंपोनेंट है, ठीक है, तो वेलोसिटी जिहड़ी है वो की निकल के आई आर कैप प्लस सॉरी आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। ठीक है, हुण ये निकल के आई, ये अंदर याद रखियो जिहड़ा आर कैप वाला कंपोनेंट है उन्होंने की कहने हो रेडियल कंपोनेंट, एक ही बन गया रेडियल कंपोनेंट। ये थीटा कैप वाला जिहड़ा है एक ही बन गया ट्रांसवर्स कंपोनेंट। की बन गया ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ठीक है, हुण याद रखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जिहड़ा है ट्रांसफर्स और टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्को हुंदा है, चाहे वेलोसिटी का होवे एक्सेलरेशन का होवे। ठीक है, पर जे बॉडी किसी होर पाथ च मूव कर रही है, मान लो एलिप्टिकल के अंदर जो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, जे बॉडी एलिप्टिकल पाथ च मूव कर रही है तो ये हो गया उसका रेडियल कंपोनेंट, बाहर वाल नूं आर कैप, इधर वाल नूं किते वाल नूं होएगा थीटा कैप, ते इधर नूं होएगा किहड़ा उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। पर जे यही मोशन जिहड़ा है यूनीफॉर्म सर्कुलर मानते तो उसके अंदर देखो ये हो गया आर कैप सेंटर तो बाहर वाल नूं, ये जिहड़ा हो गया तुहाडा थीटा कैप। थीटा कैप और टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम हो जाते हैं, यानी कि ट्रांसफर्स और टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम हो जाते हैं इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, बट जे गल करिए किसी होर इन जनरल मोशन की तो सेम नहीं होंगे। ठीक है जी, तो ये साडे कोल एक्सप्रैशन आ गया वेलोसिटी का। हुण इहनूं एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे कि एक्सप्रैशन आ जाएगा एक्सेलरेशन का। हुण देखो काफ़ी कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगा क्योंकि एदियां देखो इनू फर्दर करोगे जो डिफरेंशिएट तो दो टर्म्स बन जाएंगे, क्योंकि आर कैप डॉट भी आएगा, फिर उस तो बाद इनू जो करोगे तो तीन टर्म्स होर बन जाएंगे, तो टोटल साडे कोल कितनी टर्म्स बन जाएंगियां 5 टर्म्स जिहड़ियां है वो साडे कोल बन जाएंगियां। फटाफट करके जिहड़ा है तुसी देख भी सकते हो इनू, जिहड़ा आर कैप है एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो एवें आ जाएगा प्लस, हुण इनू कर दो डिफरेंशिएट आर डॉट आर कैप डॉट कर दो प्लस, हुण इनू तिन्नां नूं करना पेगा, मैं इनू हटा रही हूँ इधरों, इनू भी ना बोर्ड नूं कदे कदे ये भी कदे कदा टाइम पास करदा। चलो हुण ये आ गया, इनू कर दो डिफरेंशिएट, ये हो गया आर डॉट, बाकी दोनों कॉन्स्टेंट आ गए प्लस, हुण इन्हां नूं जिहड़ा है कॉन्स्टेंट रखो, इत्थे आ गया थीटा डबल डॉट प्लस, हुण की कर दो आर थीटा डॉट थीटा कैप, हुण की करो आर कैप डॉट ते थीटा कैप डॉट की जगह ते वैल्यूज पा दो,
ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਰ ਕੈਪ ਡਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੀਟਾ ਡਾਟ ਥੀਟਾ ਕੈਪ ਔਰ ਥੀਟਾ ਕੈਪ ਡਾਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਆਰ ਕੈਪ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਡਾਟ ਆਰ ਕੈਪ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੋਗੇ ਬਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਰ ਕੈਪ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਥੀਟਾ ਕੈਪ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਰੇਡੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ देखो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ r ਡਬਲ ਡਾਟ ਮਾਈਨਸ r ਥੀਟਾ ਡਾਟ ਸਕੁਆਇਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਡੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 2r ਡਾਟ ਥੀਟਾ ਡਾਟ प्लस r थीटा डबल डॉट ठीक है जी ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਡੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ठीक है जी और ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ r कैप और थीटा कैप ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ r ਹਟਾ ਦਿਓ ਹੋ ਗਿਆ r कैप cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਥੀਟਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਥੀਟਾ ਕੈਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਸਾइन थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ कि r कैप और थीटा कैप फिक्स नहीं होंगे वेरिएबल होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करते हैं तो r कैप डॉट की है थीटा डॉट थीटा कैप ते थीटा कैप डॉट की है माइनस थीटा डॉट r कैप ठीक है देखो उल्टा कर दो बस r कैप डॉट लिखना है तो पीछे आएगा थीटा कैप ते अगे आ जाएगा थीटा डॉट थीटा कैप डॉट लिखना है तो पीछे आ जाएगा r कैप अगे की आ जाएगा माइनस थीटा डॉट ठीक है ये तुसी याद रखने उस तो बाद वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट तुहानू पता होना चाहिए की है r डॉट है और वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट की है r थीटा डॉट है एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट की है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर है और एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्स कंपोनेंट की है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट जिहड़ा है एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्स कंपोनेंट है तो ये हो गया कुछ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बारे थोड़ा जिहा कॉन्फिडेंस लेके आने लई की करदे हां आपां एक अद्धा क्वेश्चन जिहड़ा है इहदे नाल जुड़िया होया सॉल्व करने की कोशिश करांगे ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ the sum of x components of unit vectors r cap dot and theta cap dot for a particle moving with angular speed of 2 radian per second at an angle theta 215 degrees is ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮ ਦੱਸੋ x ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ r cap dot and theta cap dot for a particle moving with angular speed 2 radian per second ਦੱਸੋ ਇਹ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ dt by d theta by dt ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੀਟਾ ਡਾਟ ਦੀ ਥੀਟਾ ਡਾਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਰੇਡੀਅਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है एट एन एंगल थीटा कितना दिता हुआ है 215 डिग्री थीटा भी दिता हुआ है कितना 215 डिग्री हुण तुसीं की कैलकुलेट करना है सम ऑफ x कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स r कैप डॉट एंड थीटा कैप डॉट r कैप डॉट की सीगा r कैप डॉट की सीगा थीटा डॉट थीटा कैप और थीटा कैप डॉट की सी माइनस थीटा डॉट थीटा कैप यही सीगा हुण की करो बई थीटा कैप नू एज इट इज रख सॉरी इत्थे आर कैप आना सी है ना इत्थे गलती करती इत्थे की आना सी आर कैप देखो थीटा डॉट दी वैल्यू सानू पता है 2 कितनी है 2 है आर कैप थीटा कैप और आर कैप दी वैल्यू भी सानू पता है कॉस और साइन दी टर्म्स दे अंदर आई कैप और जे कैप दी टर्म्स दे अंदर तब पा दो इत्थे बई वैल्यू आर कैप डॉट कितना हो जाएगा थीटा डॉट दी जगह ते पाता 2 थीटा कैप कितना सीगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप ठीक है थीटा
कैप डॉट माइनस थीटा डॉट नो दी जगह कितना आ गया 2 आ गया आर कैप नो तुहानू पता लिख सकते हो cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप। हुण सानू कैलकुलेट की करन नू कह रहे सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स यानी कि सिर्फ और सिर्फ आई कंपोनेंट्स आई कैप वाले कंपोनेंट्स का सम आपां कढना है अंदर। तो देखो आई कैप वाला कंपोनेंट इत्थे की हो गया इत्थे हो गया -2 sin थीटा प्लस ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ -2 cos थीटा यानी कि ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ -2 ਬਾਹਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ sin थीटा प्लस cos थीटा ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ठीक है जी sin थीटा प्लस cos थीटा ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ थीटा की वैल्यू दी हुई है 215 डिग्री पा दो इत्थे -2 sin 215 प्लस cos 215 हुण बई इनू अगे सॉल्व करके इहदा आंसर तुसीं किहदे अंदर दोगे कमेंट्स के अंदर जिहड़ा है इहदा आंसर दोगे और दसदा तुहाडी नॉलेज दे लई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मास्टर कार्डर दा ठीक है। तो देखो किन्ने सिंपल क्वेश्चन जे है पूछे जाते जे तुहानू बेसिक जे फॉर्मूलाज की जिहड़ी है नॉलेज होवे तां तुसीं जिहड़ा है आराम दे नाल कर सकते हो इस क्वेश्चन नू इहदे अंदर कोई भी जिहड़ा है प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तुहानू ठीक है। देखो कितना ईजी क्वेश्चन सीगा बस तुहानू दो जिहड़े फॉर्मूले है वो पता होने चाहिए सी इहदे अंदर एक सीगा कि तुहानू ये पहचानना आना चाहिए कि जिहड़ा एंगुलर स्पीड है वो की है थीटा डॉट है 2 रेडियन पर सैकेंड दिता हुआ है और उस तो बाद बस ये दो फॉर्मूले जे तुहानू पता सी तां तुसीं ये क्वेश्चन नू बड़ी आराम दे नाल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत तो। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ देखो डिराइव करन नू तां बई जे तुसीं देखो ये डेरिवेशन 5 पेज लंबी जदों आपां स्फेरिकल पोलर कोआर्डिनेट सिस्टम करांगे तां ये डेरिवेशन चाहे 5 पेज लंबी कर लो तुसीं पर एग्जाम दे अंदर क्वेश्चन किधरों बनना है क्वेश्चन बनना है फॉर्मूलाज तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से आपां काम करना है जे आपां एग्जाम नू क्रैक करना है तां जे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ते आपां काम करना है तां उहदे लई सानू वध तों वध फोकस कित्ते होना चाहिए रिजल्ट्स ते ਤਾਂ ਨਾਲ यार अपने फॉर्मूला शीट्स बनाते चलो ठीक है। जिवें इत्थे मैं हुण तुहानू प्लेन पोलर जिहड़ा कोआर्डिनेट सिस्टम कराया है प्लेन पोलर जिहड़ा कोआर्डिनेट सिस्टम करवाया है इहदे जिन्ने भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट तुहानू मैं दस्से है ठीक है किहड़े हो गए एक तां आ 3 फॉर्मूले हो गए उहदे तो बाद आ 2 फॉर्मूले हो गए ठीक है और लास्टली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला तां इहदी तुहाडी एक लिस्ट बन जानी चाहिए है ताकि जदों भी तुसीं इस टॉपिक नू रिवाइज करो लिस्ट तुहाडे सामने होवे और फॉर्मूले तुसीं देखदे ठीक है जी। ये हो गया प्लेन पोलर कोआर्डिनेट सिस्टम एवें ही जिहड़ा साडा अगला हुंदा है वो किहड़ा हुंदा है पोलर दे अंदर दूसरा आंदा है स्फेरिकल पोलर कोआर्डिनेट सिस्टम स्फेरिकल पोलर कोआर्डिनेट सिस्टम हुण जिवें उत्थे 3D कार्टेशियन पढ़िया सी XYZ उवें ही इत्थे किहड़ा है स्फेरिकल पोलर कोआर्डिनेट सिस्टम है। पोलर कोआर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप एक पॉइंट नू सर्कल की बाउंड्री ते रिप्रेजेंट करिया सी जे तुसीं हुण किसी पॉइंट नू 3D के अंदर एक स्फीयर की बाउंड्री ते रिप्रेजेंट करना चाहते हो जे एक स्फीयर की बाउंड्री ते रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो किहदा यूज करोगे स्फेरिकल पोलर कोआर्डिनेट सिस्टम का जिहड़ा है तुसीं इहदे अंदर यूज करोगे। तो थोड़ा जिहा तुहाडी विजुअलाइजेशन के लिए थोड़ा दस दिंदी हां स्फेरिकल पोलर कोआर्डिनेट सिस्टम के बारे। देखो ये रहा एक स्फीयर ठीक है जी ये उपर तुसीं किसी पॉइंट नू रिप्रेजेंट करना चाहते हो ठीक है किसी पॉइंट नू रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो सब तो पहला तो तुहानू की चाहिए सब तो पहला तो तुहानू रेडियस चाहिए स्फीयर का ठीक है तुहाडे कोल की होना चाहिए रेडियस होना चाहिए जिन्हों कि तुसीं की करने हो रेडियल वैक्टर कहोगे ठीक है आर वैक्टर तुहाडे कोल होना चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करेगा किनू रेडियस जिहदा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा रेडियस ऑफ स्फीयर नू। दूसरा तुहाडे कोल की होना चाहिए बई एक होना चाहिए प्लेन एंगल दूजा तीजा होना चाहिए सॉलिड एंगल मतलब कि जे मैं एक कोन इमैजिन कर ला जे मैं एक कोन इमैजिन कर ला जिहदा कि वर्टेक्स ओरिजिन ते है और उहदी जिहड़ी हाइट है अलोंग पॉजिटिव Z एक्सिस है ठीक है उहदी हाइट अलोंग पॉजिटिव Z एक्सिस है तां किहड़ा एंगल वो बना रहा है पोजिशन दे नाल ठीक है पॉइंट दे नाल जे मैं ओरिजिन दे नाल उस पॉइंट दे नाल एक लाइन जॉइन करदा यानी रेडियस एक तरीके का हो गया उहदे नाल जिहड़ा एंगल बना रहा है थीटा एक तो सानू ओदी लोड़ पेगी देखो और ये थीटा कितना होएगा ये रेंज कितनी होएगी 0 to 2 पाई क्योंकि ये 0 तो लेके 2 पाई जिन्ना मर्जी घूम सकता है ठीक है स्फीयर की बाउंड्री के उपर 0 to 2 पाई जिन्ना मर्जी है घूम सकता है ऊपर 180 नीचे 180 ठीक है। लास्टली तुहानू किहदी लोड़ पेगी एक एंगल की लोड़ पेगी
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, r ਥੀਟਾ ਫਾਈ। r ਕੀ ਹੈ, r ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਸਫੀਅਰ ਦਾ, 0 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਂਜ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਂਜ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ r ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 0 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਦੇਖੋ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਫੀਅਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਟੂ 2 ਪਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਟੂ 2 ਪਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੇਨਿਥ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਜ਼ੀਮੂਥਲ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਜ਼ੀਮੂਥਲ ਐਂਗਲ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 0 ਟੂ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਟੂ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੇਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ 180, 0 ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਂਜ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਂਜ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ r ਥੀਟਾ ਤੇ ਫਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ r ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ xi ਕੈਪ ਪਲਸ yj ਕੈਪ ਪਲਸ zk ਕੈਪ। ਦੇਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਟੀਸੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ xyz ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ r ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਫਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ r cos ਥੀਟਾ r sin ਥੀਟਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ x y ਔਰ z ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ r ਥੀਟਾ ਫਾਈ। ਤਾਂ x ਹੋ ਗਿਆ r sin ਥੀਟਾ cos ਫਾਈ, y ਹੁੰਦਾ ਹੈ r sin ਥੀਟਾ sin ਫਾਈ, ਔਰ ਲਾਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ z ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ r cos ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ r cos ਥੀਟਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ r ਥੀਟਾ ਫਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ x y z, ਉਲਟਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ r ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ x ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ y ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ z ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, cos ਇਨਵਰਸ y अपॉन r है, या ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ cos ਇਨਵਰਸ z अपॉन r, cos इनवर्स z अपॉन r है, cos इनवर्स z अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है जी, और फाई जेड़ा है वो की है tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले तुहानू पता होने चाहिए। एक्स वाई जेड नू की लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ r थीटा फाई, और r थीटा फाई नू किवें लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x वाई जेड। ठीक है जी, ये 6 फॉर्मूले तुहानू पता होने चाहिए। इन्हां दे अंदरों क्वेश्चन बन जाता है किवें कित्थे काम आएगे ये चीज़ां। तुहानू कोई भी कोआर्डीनेट्स देते, मान लो मैं तुहानू कोआर्डीनेट्स देते 2, 2π/3, π/3, तो हम उन्हें कोआर्डीनेट्स कितने हैं, स्फेरिकल पोलर दे हैं r थीटा फाई। मैं कहता इन्हों कन्वर्ट करो बई कार्टीजियन के अंदर, तो उत्थे तुहानू r थीटा फाई पता है, x y z तुसीं कढ सकदे हो वैल्यूज पा के। ठीक है, तो एवें जिहड़े है एवें दे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते भी, आपां उन्हां नूं प्रैक्टिस भी करांगे आने वाली क्लास के अंदर। ठीक है जी, तो एक तो ये 6 फॉर्मूले तुहानू पता होने चाहिए। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ x y z ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ r ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। r ਵੈਕਟਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਫੈਰਿਕਲ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, r cos थीटा cos phi i कैप प्लस r सॉरी cos थीटा नहीं इतने sin थीटा r sin थीटा cos phi i कैप r sin थीटा sin phi j कैप प्लस r cos थीटा k कैप। ठीक है जी, ये आ गया। हुण आर कैप किवें लिख सकते हो, ये सीगा आर वैक्टर। हुण इहदे 3 यूनिट वैक्टर्स होणगे, आर कैप थीटा कैप फाई कैप। उन्हां नूं किवें लिख सकते हैं, आर कैप लई भी सारे एक्सप्रैशन दे अग्गेों आर हटा दो, जिवें उत्थे करिया सी sin थीटा cos फाई आई कैप प्लस sin थीटा sin फाई जे कैप प्लस cos थीटा के कैप। ये आ गया। हुण थीटा कैप किवें लिखना है, उत्थे की करिया सी थीटा कैप लिखण लई
थीटा ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਫਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਸਾइन थीटा ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ cos थीटा cos फाई आई कैप प्लस साइन थीटा ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ cos थीटा sin फाई j कैप, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ माइनस sin थीटा k, ठीक है जी, ये हो गया फाई कैप थीटा कैप। ਹੁਣ ਲਾਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ फाई कैप ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, फाई कैप लिखण ਦੇ ਲਈ ਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, थीटा वाली टर्म ही उड़ा देनी है, थीटा वाली टर्म उड़ा दो और एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू फाई, ठीक है, थीटा वाली टर्म उड़ा के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो कितना आ जाएगा, थीटा हटाता cos फाई हो गया माइनस sin फाई आई कैप, और इथे sin फाई की हो गया प्लस इथे cos थीटा हटाता ये हो गया cos फाई जे कैप। हुण ये टर्म तो हैगी हुई थीटा वाली है तो ये तो आएगी नहीं, ठीक है जी। तो ये साडे की हो गए आर कैप थीटा कैप और फाई कैप आ गए, ठीक है जी। हुण इहदे अंदर जिहड़े तुहाडे वेलोसिटी कंपोनेंट है और एक्सेलरेशन कंपोनेंट है, वेलोसिटी कंपोनेंट और एक्सेलरेशन कंपोनेंट जिहड़े है वो भी तुहानूं पता होने चाहिए, तो मैं फटाफट जिहड़े है वो लिख दिंदी हां। वेलोसिटी कंपोनेंट कड्ढण लई की कर सकदे हो बई, पहला दा एक कंपोनेंट आएगा आर कैप वाला, एक कंपोनेंट की आएगा, एक कंपोनेंट आएगा थीटा कैप वाला और एक कंपोनेंट किहदा आएगा फाई कैप वाला। हुण इहदे अंदर 3 कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। तो आर कैप वाला कंपोनेंट बई उही रहिंदा है जिहड़ा तुहाडा प्लेन पोलर दे अंदर सीगा आर डॉट, उधर भी आर डॉट सीगा, तो इधर भी जिहड़ा है तुहाडा की रहेगा आर डॉट ही रहेगा। जिहड़ा तुहाडा दूसरा कंपोनेंट है थीटा वाला थीटा कैप, वो भी सेम ही रहिंदा है, पिछले वाला थोड़ी छोटी बन गई ब्रैकेट, वो भी सेम ही रहिंदा है पिछले वाला आर डॉट सॉरी आर थीटा डॉट, आर थीटा डॉट यही सीगा। ਉਹਦੇ अंदर भी वेलोसिटी का कंपोनेंट, बस ਇਹਦੇ अंदर एक फाई कैप वाला कंपोनेंट ਜਿਹੜਾ है वो एक्स्ट्रा आएगा, जो कि ਕੀ ਹੁੰਦਾ है फाई कैप वाला कंपोनेंट एक एक्स्ट्रा आएगा जो कि होएगा आर फाई डॉट साइन थीटा, ठीक है जी। तो देखो वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट आ गए, एक आर कैप वाला आ गया, एक थीटा कैप वाला आ गया, एक आ गया फाई कैप वाला, ठीक है। आर कैप वाला कंपोनेंट की है आर डॉट, थीटा कैप वाला वही है आर थीटा डॉट, और जेड़ा आर फाई कैप वाला है वो भी वही है, सॉरी वही नहीं है, ਉਹਦੇ अंदर ਤਾਂ ਸੀਗਾ ही नहीं फाई कैप वाला, तो ਇਹਦੇ अंदर एक एक्स्ट्रा ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखना पेगा आर फाई डॉट साइन थीटा, ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹਦਾ एक्सेलरेशन ਦਾ ਜਿਹੜਾ एक्सप्रेशन ਹੁੰਦਾ है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड ਹੁੰਦਾ है, क्योंकि जो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन निकल के आएगा, क्योंकि हर बार चेन रूल लगेगा, क्योंकि सारी क्वांटिटीज चेंज कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ नहीं पूछा जाता। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਫੈਰੀਕਲ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ एक्स वाई जेड ਕੱਢਨੇ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ, आर थीटा फाई ਦੇ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜੇ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ हो गया पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला, ये क्वेश्चन ਨੂੰ भी करांगे सॉल्व अगली क्लास ਦੇ ਅੰਦਰ। हाँ जिवें देखो आ क्वेश्चन है आर थीटा फाई देता, ठीक है, 8, 2π/3, π/3 कहता एक्स वाई जेड कड्डो। तो हुण ये क्वेश्चन तुहाडा की रहेगा, होमवर्क रहेगा, इहनूं तुसीं प्लीज नोट कर लो। आर थीटा फाई देता 8, 2π/3, π/3 और कड्डा की है एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स की हुंदा है आर cos थीटा cos फाई, वाई की होंगे आर cos थीटा, सॉरी इतने साइन थीटा आएगा, है ना, भूल ना जाओ, मैं भी कई बार कंफ्यूज ही हो जानी है। आर साइन थीटा cos फाई, और इतने आएगा आर साइन थीटा साइन फाई, और लास्टली तुहाडा की आएगा z जिहड़ा है वो की आएगा आर cos थीटा। तो ये एक्सप्रैशन तुहानूं पता है, आर थीटा फाई की वैल्यू पता है, इन्हों पुट कट के की कर सकते हो तुसीं एक्स वाई जेड कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तुहाडा की रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, इन्हों नैक्सट क्लास के अंदर जिहड़ा है आपां डिस्कस करांगे। तो ये सीगी बई अज दी जिहड़ी तुहाडी क्लास सीगी, इहदे अंदर आपां सारे फॉर्मूले जिहड़े है वो देख चुके हैं, और ये सारे फॉर्मूले जिहड़े है बई तुसीं इन्हां नूं अपने कोल किते ना किते नोट करके रख लो, क्योंकि ये जिहड़े फॉर्मूले हैं बहुत ज़्यादा जरूरी रहणगे। सफेरिकल पोलर सिस्टम देख चुके हैं, 2D सीगा, 3D देख चुके हैं, कार्टीजियन सफेरिक जिहड़ा साडा प्लेन पोलर है, इन्हों डिटेल च आप डिस्कस करें, अंदर तो एक्सप्रैशनस नूं डिराइव भी आप करिया है, ठीक है।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦਾ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਕਲਾਸ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਮ ਜਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਬਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ।